Otherwise, so introduction of fund flow analysis. Fund flow analysis is what? Analysis of financial statements, which shows as to how a business entity has obtained its funds and how it has applied or employed its funds between the opening and closing balance sheet dates. This is basically what we were doing in cash flow statement. We were seeing whether there was cash flow from operating activity, financing activity, investment activity. Then we were calculating the cash generated during the year. Then we were tallying it with the difference in the opening and closing balances. Same thing we are going to do here also. We are going to see what were the funds available on the opening balance sheet date and closing balance sheet date, and the difference will be the funds generated or applied during the financial year. Okay, so this is fund flow analysis. Now, cash flow analysis refers to preparation of cash flow statement. Okay, this can come as a MCQ. What is the difference between fund flow analysis and cash flow analysis? You must remember that in cash flow analysis, we prepare a cash flow statement of last 2 years. Based on last 2 years, preparation of cash flow statement is mandatory as per accounting standard 3. Okay, fund flow analysis preparation is not important, but cash flow statement is important as per accounting standard 3. I hope you know what is accounting standard. If you don't know, don't worry about it. Okay, once again, I will just underline it. Fund flow analysis, analysis of financial statements, cash flow analysis, preparation of cash flow statement. If funds obtained, funds applied or employed between opening and closing balance sheet dates. Okay, and preparation of cash flow statement on basis of balance sheets of last 2 years. Preparation of cash flow statement is mandatory as per accounting standard 3. Okay. After this, they have given some theory about what is the concept of fund. Now, in cash flow statement, whenever there was cash inflow into the company, we were adding it in the cash flow statement, and whenever there was an outflow, we were deducting it. Okay, same thing what we are going to do is, instead of doing add and less, we are going to write sources of funds on the debit side and applications of funds on the credit side. Okay, don't say debit side or credit side. Say that left hand side will be sources of funds and right hand side will be application of funds. Okay, now you can understand that funds from operations, this is basically cash generated from operating activities. Then issue of new share capital, issue of debentures, long-term borrowings. This is what cash generated from financing activities. Then sale of investment, sale of fixed asset. This is what cash generated from investment activities. Again, dividend received. Okay, this also we will include in cash flow from investment activities. Then decrease in working capital. Okay, don't write here increase in working capital. What you have to do is, for working capital, you have to do ulta. You have to give ulta treatment. Instead of writing increase, we will write decrease in working capital in sources of funds as inflow. Okay. Same here, what we will write now, all the negative figures of cash flow statement: loss from operation, payment of dividend, purchase of assets, payment of tax. Once again, loss from operations, you know that it is an operating activity.
then payment of dividend, financing activity, purchase of asset, investment activity. Now what they have done is they have done here some khichdi so you can understand. Payment of tax is also what? Operating activity. Then shares redeemed, debentures redeemed. Then payment of long-term debt. Okay, these are all again financing activities. Now here on the right hand side, we will write increase in working capital instead of writing increase in working capital. Okay, so you have already learned something which is very much advanced in cash flow statement. So this is nothing difficult. Okay, what we will do is we will directly solve one question so that you can understand, and you can also start reading the theory of cash flow statement because we have solved a lot of questions. You will have now more insight as to what is given in the theory. Okay, let's solve question number 1 of fund flow analysis. Okay, same treatment that we were giving for cash flow statement, we are going to do here also. From the following balance sheets of XYZ Limited, prepare a statement showing sources and application of funds for the year ended 31st March 2015. Okay, they have given a balance sheet and they have also given some additional information. Okay, let's read first the additional information. Depreciation has been charged on plant and land and building. I hope everyone has these notes. So depreciation has been charged on land and building and plant 10,000 and 20,000. So I will just underline uh, land and building so that I know that there is an adjustment of depreciation. Then interim dividend of 20,000 has been paid in 2014 and 15. Okay, so we know that whenever an interim dividend is paid, effect will be given either to the proposed dividend account or it will be directly paid. Now they have given the opening balance and closing balance of proposed dividend account, so we will adjust the interim dividend in that. Then income tax paid during the year 35,000. Okay, I think they have also, yes, they have also given a provision for taxation. Okay, we never write taxation provision. We will always write what? Provision for tax. Okay, this is a wrong accounting here. We will write provision for tax. Now let's solve this question. Now you can see goodwill. Okay, I will just use another ink now. Goodwill. Now tell me how much goodwill is written off. Goodwill written off is how much? 25,000. Yes or no? After that, land and building. Now we will prepare a account for land and building properly. I hope there is no provision for depreciation in this question. Now opening balance is what? 2 lakh rupees. And closing balance is 1,70,000. They have given a depreciation on land and building of what amount? 20,000. Okay, how much? 20,000. Now the journal entry for depreciation is what?
depreciation account debit to land and building. How much? 20,000. I will write the journal entry here now. 20,000. Now, as you can see that if we try to tally this, there is a difference of 10,000 in the land and building account. Now tell me, what is this? Where did this 10,000 go? Okay, so it seems that we have sold some land and building during the previous year. Okay, so I will write down here land and building. Okay, just a minute. Instead of this, we will prepare the account, sources of funds and application of funds. Okay. In sources, I will write 10,000. What is this 10,000? We have sold some land and building. We don't know whether we have achieved a profit or loss on it. They have not given any information, so we will just assume that it was sold for 10,000 rupees. Okay. After that, plant. Opening balance is what again? 80,000. Closing balance is 2 lakh rupees. Okay, what is the amount of depreciation they have charged? 10,000 on plant. Okay. Now again, you can see that there is a difference. If you try to calculate the difference, you can see that 2,10,000 minus 80,000, there is a difference of 1,30,000. It seems that they have purchased plant of 1,30,000. Okay. So this is the balancing figure 1,30,000. So in application, I will write here now 1,30,000 plant because it is outflow. कैश बाहर जा रही है बिजनेस से, तो मैं एप्लीकेशन में लिख रहा हूँ. ठीक है. अभी ये हो गया प्लांट. उसके बाद डेटर्स. अभी डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब क्या है? हम इसको बोलेंगे करंट असेट्स. ठीक. और ये जो यहाँ पे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिए हैं, इनको क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटीज. ठीक है. हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में करंट असेट अगर इंक्रीज होते हैं तो उसका उल्टा करना है, डिक्रीज करना है, और अगर वो डिक्रीज होते हैं तो उसका उल्टा करना है, मतलब ऐड कर देना है. ठीक है. तो यहाँ पे ऐसा कुछ करना नहीं है. यहाँ पे हमको एक अलग से शेड्यूल बनाना है. ठीक है. तो मैं यहाँ पे रफली बना देता हूँ एक शेड्यूल. पहले सबसे करंट असेट्स लिखेंगे हम लोग. यहाँ पे डेटर्स, फिर स्टॉक, फिर बिल्स रिसीवेबल, फिर कैश इन हैंड एंड फिर कैश एट बैंक. ठीक है. फिर आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखना है. ठीक है. फिर क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, और फिर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ऐसे 4 कॉलम बनाने. ठीक है. अभी अगर आपको चाहिए तो आप बुक में भी देख सकते हो. ये एक मिनट है, बताता हूँ. वहाँ पे दिया है. ठीक है. ये देखो, ये तुम्हारा ये है स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. ये करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का यहाँ पे लिखना है आपको. फिर ये आपका ओपनिंग बैलेंस है
प्रीवियस ईयर, और करंट ईयर का ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक। उसके बाद आप अगर इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे लिखोगे, अगर डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। कोई भी आइटम के सामने दोनों दोनों कॉलम में अमाउंट नहीं लिखना है, एक ही कॉलम में अमाउंट आएगा, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, दूसरे कॉलम में आप क्या करोगे, डैश लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज का टोटल लेना है और डिक्रीज का टोटल लेना है, और उसके हिसाब से आपको निकालना है नेट वर्किंग कैपिटल कितना है, ठीक है। मतलब क्या, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करना है, और कुछ करना नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। फटाफट इसको खत्म कर देते हैं। डेटर्स 40,000 से बढ़ गया है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 40। उसके बाद स्टॉक 32,000 से बढ़ गया है, करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे 32 लिख रहा हूँ मैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चैट बॉक्स में लिखवा, ठीक है, ऐसे ही ये मत करो, सर के ऊपर से जा रहा है ऐसे। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 10,000 से बढ़ गए, तो यहाँ पे 10 लिखता हूँ मैं इंक्रीज के कॉलम में। उसके बाद कैश इन हैंड 5,000 से कम हो गया, तो मैं डिक्रीज में लिखता हूँ 5। उसके बाद कैश एट बैंक भी 2,000 से कम हो गया, तो मैं डिक्रीज में लिखता हूँ 2, ठीक है। ये हो गया करंट असेट। अभी लिखते हैं करंट लायबिलिटीज। तो कुछ क्वेश्चन है क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, ये करंट लायबिलिटी है, करंट असेट है? अगर है तो लिया क्यों नहीं है, देखते हैं, ठीक है, रुको जरा। फिर क्रेडिटर्स आते हैं और फिर बिल्स पेबल आते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स क्या हो गया है, 8,000, 28,000, तो यहाँ पे 28 लिखता हूँ मैं। हाँ, इंक्रीज हुआ है। और फिर बिल्स पेबल 4,000 से कम हो गया, तो मैं डिक्रीज में 4 लिखता हूँ, ठीक है। तो अभी इसका ये करेंगे, अभी 1 मिनट रुको जाओ। ठीक है, तो इंक्रीज कितना हुआ है, 40 प्लस 32 72, 82, 82 माइनस 60, 50, कुछ तो गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। हाँ, अभी करंट लायबिलिटीज बढ़ गई है, तो हम लोग ये जो इंक्रीज एंड डिक्रीज लिखा है, ये क्या लिखा है, इंक्रीज क्या हो गया, डिक्रीज क्या हो गया, तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो जब भी करंट लायबिलिटी होगा, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो हम हमें उसको क्या लिखना है, डिक्रीज के कॉलम में लिखना है, ठीक है। सीधा ये वाले कॉलम में नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है डिक्रीज 28, और यहाँ पे लिखना है, ठीक है। हम लोग वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज की, करंट एसेट या करंट लायबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसका सीधा टोटल ले लो, कितना हो रहा है, 86,000 आएगा यहाँ पे। जगह थोड़ी कम है, जाने दो। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 28 प्लस 7, 35। सर करेंट करंट लायबिलिटी का वापस बताना। हाँ, करंट लायबिलिटी का ना, देखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। हमने ये रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में पढ़ा था, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो अगर करंट असेट बढ़ेंगे, ठीक है, करंट असेट अगर बढ़ेगा तो
वर्किंग कैपिटल भी हमारा बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, जब भी करंट एसेट इंक्रीज हुआ है मैंने वर्किंग कैपिटल इंक्रीज के कॉलम में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होता है, ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। इसीलिए क्रेडिटर्स जब इंक्रीज हो गए मैंने उसको वर्किंग कैपिटल डिक्रीज के कॉलम में यहाँ पे लिख दिया 20, ठीक है। ये तुम्हारा इस चैप्टर में आपको ये याद रखना है कि इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल के साथ कैसे खेलना है, ठीक है। लास्ट चैप्टर में मैंने बता दिया था आपको उल्टा करना है करंट एसेट के लिए, यहाँ पे आपको करंट लायबिलिटी के साथ उल्टा करना है, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में करंट एसेट के साथ उल्टा बिहेवियर करो और फंड फ्लो में करंट लायबिलिटी के साथ उल्टा बिहेवियर करो, ठीक है। अभी इतना याद रख लो, बाकी सब मतलब इतना सिंपल और कोई बता नहीं सकता आपको। आगे बढ़ते हैं। तो इंक्रीज हो गया 86,000 और डिक्रीज हो गया वर्किंग कैपिटल 35,000, ठीक है। तो अगर मैं 86,000 में से 35,000 माइनस करता हूँ तो आंसर कितना आ रहा है, 51,000, ठीक है। तो हमारा वर्किंग कैपिटल कितना इंक्रीज हुआ है इस साल, तो वो है 51,000, ठीक। आपको ये सबसे पहले ये शेड्यूल बनाना है, आपको क्वेश्चन भले ही सॉल्व करना नहीं आता, अगर आपने ये शेड्यूल बना लिया आपको अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें से इसके लिए सिर्फ 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये हो गया 51,000 में, इसको हटा देता हूँ अभी। आई होप आपने लिखा होगा ये सब। अभी हमें कुछ तो और करना है। हाँ, अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि कितना प्रॉफिट हमने कमाया है, उससे पता चलेगा कितना कैश इस साल जनरेट हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है बैलेंस शीट में, द इंक्रीज इन बैलेंस इज हाउ मच, 18,000, ओके। हाउ मच इज द बैलेंस, इट इज 18,000, but we are not going to see that 18,000, we are going to write opening balance and closing balance. Now tell me, profit and loss account, whether it has a debit balance or a credit balance, tell me. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है या डेबिट होता है? बोलो बोलो जल्दी बोलो, एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, डेबिट होता है क्रेडिट होता है। एक बात याद रख लो, अगर लायबिलिटी साइड पे है तो सबका बैलेंस क्रेडिट होता है, अगर एसेट साइड पे है तो सबका बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया है 30,000, तो मैं ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे नहीं लिखूंगा 30,000, ठीक है। क्यों नहीं लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो 30,000 में इस साइड लिखूंगा। वैसे ही अगर असेट होगा तो असेट का ओपनिंग बैलेंस में डेबिट पे लिखूंगा, ठीक है। चलो, पता नहीं समझ में आया कि नहीं। अगर आपका अकाउंट्स वगैरह कच्चा रह गया होगा, फर्स्ट ईयर का मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, देखते रहो, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया 30,000, 48,000। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी पे 10,000 एंड 20,000, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको। उसका एक जर्नल एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो डेबिट में आएगा 10,000 और 20,000, ठीक है। हमें एक्चुअली साथ में बनाना चाहिए था, ऐसे कंफ्यूजन हो सकती है। फिर हमने गुडविल भी राइट ऑफ किया था 25,000, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गुडविल रिटर्न ऑफ 25,000, ठीक है।
उसके बाद अभी देखते हैं प्रपोज डिविडेंड और टैक्सेशन प्रोविजन का क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, जनरल रिजर्व का भी बैलेंस चेंज हुआ है, कितने से ऐड हो गया है, 30,000 से ऐड हो गया है, तो हम उसको भी ये कर देते हैं। वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है, उसका एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ठीक, तो यहाँ पे मैं डेबिट में लिख देता हूँ 30,000, जो अमाउंट जनरल रिजर्व को ट्रांसफर हुआ है। अभी टैक्सेशन का प्रोविजन देखते हैं, ये इसका क्या लोचा है। तो ये टैक्स का अकाउंट है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। वापस एक बार इसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पे मैं 40,000 लिखता हूँ ओपनिंग बैलेंस, और इसका क्लोजिंग बैलेंस है 50,000, तो मैं यहाँ पे 50,000 लिख देता हूँ। मुझे बताओ इस साल कितना टैक्स पे किया है हमने, बोलो बोलो, इस साल टैक्स कितना पे किया है, शायद कितना, 35,000, कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, 35,000 किया है पे। तो अगर मैं टैक्स पेमेंट करता हूँ तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इसको डेबिट में लिखता हूँ मैं यहाँ पे 35,000। ठीक है, या तो ये याद रखो, नहीं तो ये याद रखो कि बैंक अकाउंट को क्रेडिट देना है, क्योंकि वहां से पैसे गए हैं। ठीक है, तो या तो ये याद रखो, या फिर हम इसको अभी बैलेंस करते हैं। 85,000 आ रहा है, तो इसका 45,000 का प्रोविजन हमने इस साल किया है, ये आप समझ सकते हो। अभी 45,000 का इस साल प्रोविजन किया है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमने इसका ये जो बैलेंस है 45,000, इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर किया। ठीक है, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, इसका जर्नल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, कितना अमाउंट होगा 45,000। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट में लिख देता हूँ मैं 45,000 प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है, मुझे पता है मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, ये मेहनत ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी क्या करूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद अरे बहुत इजी चैप्टर है, आज ही खत्म कर देंगे इसको। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट हो गया, अभी प्रपोज डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, इसका वापस एक बार क्रेडिट बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 42,000, और उसका क्लोजिंग बैलेंस है 50,000। हमने इस साल कितना इंटरिम डिविडेंड पे किया है, 20,000। ठीक है, तो वापस एक बार उसका यहाँ पे एंट्री आएगा, बैंक सॉरी, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट, 42,000। एक मिनट, वापस एक बार देखते हैं, यहाँ पे तो 20,000 लिखा है। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20,000। तो इसका बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 70 माइनस 42, 28। ठीक है, 28,000 क्या है, हमने प्रोविजन बनाया है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर किया है। कहाँ पे ट्रांसफर किया है, तो प्रपोज डिविडेंड अकाउंट को ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 28,000। आपके पास अगर बुक है और कुछ गलत हो रहा है तो बता दो, ठीक है, बाद में वो बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो टैक्सेशन प्रोविजन हो गया है, प्रपोज डिविडेंड हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, जनरल रिजर्व हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं कि
इक्विटी कैपिटल में आप देख सकते हो 1 लाख रुपए से हमने एक इक्विटी ये कर दिया है, तो यहाँ पे 1 लाख लिख देता हूँ मैं सोर्सेस में। 1 लाख रुपए आए हैं, क्या लिखेंगे इसको, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख रुपीज। उसके बाद रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल है, ठीक है, 50,000 से कम हो गए, तो मतलब क्या हो गया, हमने इसका पेमेंट कर दिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेफरेंस कैपिटल 50,000 रिडीम कर दिए, ठीक है। अच्छे से लिखना है नोटबुक में, ऐसे मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे मत लिखो, बाद में समझ में नहीं आएगा क्या लिखना है, ठीक है। तो अभी हमने ये जो जो भी पेमेंट्स किए ये भी फटाफट लिख देते हैं यहाँ पे। टैक्स पेमेंट किया है, फिर डिविडेंड का पेमेंट किया है, ठीक है। टैक्स का कितना पेमेंट किया है हमने, 35,000 ना। और डिविडेंड का कितना पेमेंट किया है, 20,000। सर टैक्स 45,000 आएगा ना? एक्चुअली हमने वो प्रोविजन बनाई है 45,000 की, ये देखो यहाँ पे हमने जो 45,000 प्रोविजन बनाई है, 45,000 की पेमेंट 35 का ही किया है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या लिखना है, एक्चुअल कैश कितना बाहर गया है वो लिखना है, ठीक है। P&L में कितना गया है वो नहीं लिखना, जब वैसे ही मैंने डिविडेंड का जितना पेमेंट किया है वो लिखा है, ना कि प्रोविजन कितना किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। उसके बाद 50,000 हो गया, 1,30,000 हो गया, 20,000 हो गया। हाँ, अभी यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट है ये क्वेश्चन में, वो एडजस्टमेंट क्या है बताओ जरा, किसको पता है क्या। हम लोग इस साल 42,000 का पेमेंट करेंगे, ठीक है, करंट ईयर में उसका पेमेंट कर देंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिविडेंड 42,000। इंटरिम डिविडेंड हो गया, ये कौन सा डिविडेंड है, इसको हम लोग फाइनल डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है, ये पूरे साल का एक डिविडेंड अलग से पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद कुछ बचा है क्या, नहीं अभी सब कुछ हो गया है। रेफरेंस डिविडेंड का नहीं होगा शायद, ठीक है। एक काम करो, ये टोटल ले लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, डेबिट साइड का टोटल ले लो, कितना आ रहा है बताओ। और हाँ, ये जो प्रपोज डिविडेंड का क्लोजिंग बैलेंस है 50,000, हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ये बैलेंस अपने आप ऐसे ही है, यहाँ पे नहीं आएगा 50,000, हमें इसको यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। का टोटल ले लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड का, ये 48,000 क्लोजिंग बैलेंस है। मुझे ये गलत लग रहा है लेकिन पता नहीं अभी।
प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बनाना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। ये 28,000 यहाँ से निकाल देता हूँ, यहाँ पे 20 लिख देता हूँ, तो उसका पेमेंट तो मैंडेटरी होता ही है। $248,000 आ रहा है क्या? हाँ सर। तो इसमें यहाँ से 30,000 हो गया, 55, 85, 90, 130, 1,78,000, 1,98,000, 2,48,000। ठीक है, बराबर है। गलत क्या किया मैंने? तो यहाँ पे 2,48,000। तो इस साल हमने कितना कैश मिला है हमको? ठीक है, 1 ही मिनट बचा है तो मैं फटाक से बता देता हूँ आपको कितना है। सीधा अमाउंट लिख देता हूँ यहाँ पे 2,18,000। ठीक है, 1 मिनट में हम लोग वापस कंटिन्यू करेंगे।